Hello, students, and I welcome you to the session of Clarity Talks. In this session, we are going to talk about preparing smartly and successfully for two of the most prestigious agricultural exams in India, IBPS AFO and NABARD Grade A. If you are someone passionate about agriculture, rural development, and building a secure, prestigious career, then you are already on the right path. Today, I will walk you through a perfectly crafted daily schedule that will not only help you cover both exams simultaneously, but will also boost your confidence, productivity, and consistency. So, let's get started because your dream deserves a perfect plan. Okay, so today I'm going to give you a tailored schedule for aspirants with passion and discipline. You will have one strategy and you could be eligible for two prestigious exams. Why are we going to prepare together? Right? The answer is simple. Both these exams have a significant overlap in the syllabus. So, two prestigious dreams and one golden path, right? So, syllabus overlap is the primary reason why you should prepare for them together. Agriculture, rural development, current affairs, English, reasoning, these things, quants also, these are common to both the exams, right? By focusing on one comprehensive preparation plan, you save precious time, avoid confusion, and build subject mastery faster. And think about it, why fight two battles separately when you can win both together with a single powerful strategy? Okay, so you need to do a little bit of smart work, okay, so that you can attain mastery in less time. Secondly, preparing together optimizes your energy. Instead of splitting your efforts and losing momentum, you stay on one clear, steady path towards both goals. Okay. A unified strategy gives you the advantage of building confidence in the exam environment, and that's priceless. And most importantly, double preparation leads to double opportunities. In today's competitive world, having two prestigious career options, that is IBPS AFO and NABARD Grade A, is like holding two winning lottery tickets, right? Both offer financial security, respect, and long term growth. So remember, smart work beats hard work. Prepare once, succeed twice. All right? आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है दोनों का प्रिपेयर करने के लिए, तो आप आज अपना जो डेली आपका शेड्यूल है उसके साथ मैच करके देखिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से ठीक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मेरा वाला नया टाइम टेबल को देखकर उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं। ठीक है, चलिए, तो शेड्यूल आपको दिख ही रहा होगा। हमने मंडे से लेके सैटरडे तक आपको सारे पढ़ने का टाइम दिया है। ठीक है, मंडे आप क्या करोगे, क्वांट करिए। मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी पहले ही बताई थी, ऑल्टरनेट डेज पे करिए। एक बार क्वांट करिए, एक बार रीजनिंग करिए, फिर वापस क्वांट करिए, फिर रीजनिंग करिए, फिर वापस क्वांट करिए। ठीक है, इससे होगा ये कि फिर वापस रीजनिंग करिए। इससे होगा ये कि आपको बोर भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका दोनों स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, तो मंडे को क्वांट कीजिए, ट्यूसडे को रीजनिंग कीजिए, फिर वापस क्वांट कीजिए, फिर वापस रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए और ये आप करेंगे 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक, है ना। क्योंकि 1 घंटा तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझने में लगेगा। उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनको देखिए। अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया है तो हम हर संडे को क्यूआरई का एक एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको। ठीक है, फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं जिस पे आकर आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है। उसके बाद है ईएसआई और एआरडी, इसको भी आप ऑल्टरनेट पे कीजिए। ईएसआई इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड, राइट। सो आप 10 बजे से लेके 12 बजे तक इसको कीजिए। ठीक है, दिस इज़ 12, ऑल राइट, दिस 12, ओके, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, 10 to 12 AM, ऑल राइट। सो ईएसआई को आप करेंगे 10 से 12 बजे मंडे को, फिर ट्यूसडे को वापस आप एआरडी करेंगे, फिर ईएसआई करेंगे, फिर एआरडी करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटा आप ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हो एआरडी को और ईएसआई को। ठीक है, तो आप हफ्ते में कितना दिन दे रहे हो एआरडी को, आप इसको कर रहे हो 3 बार, है ना। सो 2 into 3, ऑलरेडी आपने इसको यहाँ पे 6 आवर्स दे दिया है। ठीक है, और ईएसआई के लिए भी सेम 6 आवर्स दे रहे हैं आप। सो ईएसआई आपका 6 आवर में हो जाना चाहिए, है ना। ठीक है, और फिर एआरडी के लिए भी आप दे रहे हैं 6 आवर्स, ऑल राइट।
उसके अलावा अभी देखिए, एआरडी तो सिर्फ आपका नाबार्ड स्पेसिफिक नहीं है, उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं एएफओ में भी। तो आप 7 से 11 है ना ऑलरेडी, और एक शेड्यूल हमने दिया है जब शाम को आप 7 से लेकर 11 बजे तक, यानी कि लगभग 4 घंटे आप बैठने वाले हैं फिर से एआरडी को लेकर। और ये स्लॉट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, एवरी डे यू आर गोइंग टू सिट विद एआरडी। क्योंकि अगर आप एआरडी नहीं करेंगे तो आपकी आईबीपीएस एएफओ और जो एआरडी आपको नाबार्ड में चाहिए उन दोनों का एक ओवरलैप है, वो दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करके देने वाले हैं, है ना। आपको पता ही होगा नाबार्ड का एआरडी तो फेज़ 1 में भी आने वाला है, उसका प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास है क्लैरिटी के मास्टर नोट्स और सेशंस, उनको अगर आप देखते हैं तो आपका ऑलरेडी ईएसआई वगैरह ये सब प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आपको नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में तो नहीं होगा। तो 2 घंटा रोज बैठिए 3 से 5 बजे तक आप बैठ के, एक दिन ईएसआई का करिए, एक दिन एआरडी का करिए, फिर से ऑल्टरनेट, ठीक है, ईएसआई फिर एआरडी। 3 से 5 बजे बैठकर आप आंसर्स लिखिए, ठीक है। कहीं से क्वेश्चंस ले लीजिए, हमारे कोर्स में आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने से कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सैटरडे को क्या कीजिए, सैटरडे संडे को आपका प्लान थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद संडे को आप क्या करने वाले हैं, सारे जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा कि 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं, है ना। तो 3 मंथ्स का जो भी करंट अफेयर्स है, पीआईबी में क्या आ रहा है, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीए हो गया, पीआईबी हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन सबको अगर आपने कर लिया, सीए पीआईबी, ठीक है, 3 मंथ का सीए और पीआईबी अगर आपने कर लिया तो काफ़ी हद तक आपका प्रिपरेशन हो जाता है। आप अगर देखेंगे तो ईएसआई पार्ट में ज़्यादातर पीआईबी और सीए से ही क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट 80% यही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जो स्टैटिक रिपोर्ट्स है वो देखिए, फिर ईएसआई का रिवीजन कीजिए और डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश है उसको टाइम दीजिए। और सुबह ये जो 7 बजे से 9:30 बजे का स्लॉट है, ये आप लोग क्वांट रीजनिंग कर रहे थे सैटरडे तक, संडे को आप करेंगे इंग्लिश, ठीक है। और सारे रिपोर्ट्स कंप्लीट करेंगे और 2 घंटा बैठ के इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव उतना मुश्किल नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चों को कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं, ठीक है। फिर ईएसआई का रिवीजन कीजिए 7 से 11 बजे तक। फिर आपके पास अगर वक्त बच रहा है तो आप क्या करिए, जो स्टैटिक रिपोर्ट है उसको भी देखते रहिए, ठीक है। और ये कुछ है जो नाबार्ड में आएंगे, जैसे जीए हो गया, उसके बाद डिसीजन मेकिंग हो गया, और हो गया कंप्यूटर नॉलेज, है ना। ये सब आप करेंगे जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद भी आपको लगभग काफ़ी टाइम मिलता है, तो उसमें आप कर लेंगे, ठीक है। और आईबीपीएस एएफओ के लिए एक नोट है कि रीडिंग नोट्स बट नॉट सॉल्विंग मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू लीड यू टू एनीवेयर। यही हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ, दे वर नॉट एबल टू क्लियर बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा, आराम से प्रिपेयर कीजिए, बहुत टाइम है, ठीक है। आपने अभी जो शेड्यूल बना के रखा हुआ है उसमें देखिए कि कितना आपने ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, है ना। ये इसलिए बनाया गया है कि एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट को हर दिन लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और फिर आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक होगा, है ना। और थोड़ा सा डर भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसे एआरडी हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो, है ना। किसी किसी को हो सकता है कि कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, ईएसआई उन्होंने अपने ग्रेजुएशन डेज में नहीं पढ़ा है, अब वो दोबारा पढ़ रहे हैं तो उनको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। किसी किसी को स्कीम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जब भी आपको लगे कि नहीं अब तो बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, तो वो चीज़ उठा लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। So this is the schedule. I hope I'm clear. If you have any questions regarding the schedule, you can always ask them in the comment section. It is open for you. I will be answering your queries. All right. Okay. So let's look at these tips. Okay. So the first tip is that consistency is your greatest weapon. I know कभी कभी आपका लगता होगा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, 1 घंटा बैठिए कम से कम हर दिन, ठीक है। Success is not an accident. It is the result of discipline, consistency and belief. ये पता ही होगा आपको, as you walk through this journey, so you will feel lethargic. Sometimes you will feel that there is no mental energy left in me. But still you should give 1 hour. वो जो 1 hour है ना, वो आपको consistency बनाने में help करेगा। क्योंकि जैसे ही आप give up करते हो तो क्या होता है, अगले दिन फिर बैठने का मन नहीं करता, और ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम घूमने चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर पढ़ने बैठने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जगह चेंज हुई होती है, हमारा थोड़ा सा बदलाव आया होता है ना। इसीलिए ये सब मत करिए,
हर दिन 1 घंटा बैठने की कोशिश कीजिए। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, 1 घंटा कुछ ना कुछ उठा के पढ़ लीजिए। स्कीम्स वगैरह तो आप पढ़ ही सकते हैं, है ना। और जो शेड्यूल है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अभी तो मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है, उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक एक देना ही है। अगर आपने हमारा कोर्स एनरोल किया तो संडे को आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे ही रहे। एक तो आप क्यूआरई दे रहे हैं, है ना, प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है एएफओ की उससे। दूसरी आप दे रहे हैं एआरडी वाला, है मतलब आपका जो मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर एएफओ, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक संडे आप एएफओ का लगा लीजिए, एक संडे आप नाबार्ड का लगा लीजिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर संडे को, ठीक है, दोनों का ही लगाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप जब एएफओ का कर रहे हैं ना तो कुछ कुछ तो आपका नाबार्ड का भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा करंट अफेयर्स जो मैं शॉर्ट्स में कवर कर रही हूँ वो दोनों मैं साथ में ही कर रही हूँ, है ना। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 मिनट के अंदर शॉर्ट्स में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट सीए की न्यूज़ बता दूँ, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा आप, ओके। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक मॉक टेस्ट जर्नल आपको बनाना होगा। आपको समझना होगा कि गड़बड़ हो क्यों रही है, वाई इज़ इट हैपनिंग, आर यू नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, हैव यू फॉरगॉटन, डू यू नीड रिविजन। ये कुछ कुछ सवाल हैं जब आप मॉक टेस्ट जर्नल बनाते हैं वो खुद ब खुद आंसर हो जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही एक बड़ा टास्क है आपके लिए, पर उससे भी बड़ा टास्क है उसको बैठ को एनालाइज करना। अगर आप उसको बैठ के एनालाइज नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी आप बाद में बहुत पछताने वाले हो। आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी जो गलती है वो कहाँ हो रही है, ओके। ऑलराइट, फिर है करंट अफेयर और रिपोर्ट। एक नोटबुक आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको नोटबुक नहीं बनाना है, अभी जैसे बहुत लोग डिजिटल नोट्स बनाते हैं, तो एक जगह पे एक फोल्डर पे आप सारे एग्री, है ना, नाबार्ड करंट अफेयर्स आप कलेक्ट कर लीजिए मंथली, ठीक है। अगर आपने हमारा कोर्स एनरोल किया ये तो आपको मिलता ही रहेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम्स की, पीआईबी की, इकोनॉमिक सर्वे की, इनकी आप रिपोर्ट्स, है ना, इनकी अगर कोई समरी आपको मिल रही है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। कुछ रेलेवेंट चैप्टर्स हैं जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर ये सब कवर हो रहा है, वो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये है कुछ टिप्स ताकि आप इंस्पायर्ड रहें। एक विजन बोर्ड बना लीजिए। आप उसको मोबाइल के स्क्रीन पे भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने IBPS AFO अगर करना है तो उसका रिलेटेड अगर आपके पास कोई पिक्चर है उसको डाल लीजिए, या फिर किसी टॉपर का फोटो है, कुछ भी जो आपको लगता है कि देखने से आपको याद रहेगा कि दिस इज़ माई गोल, सो राइट डाउन योर गोल। अगर नाबार्ड है सो यू कुड पुट द लोगो ऑफ नाबार्ड राइट एज योर स्क्रीन सेवर। तो आप उसको देखते रहेंगे, जब भी आपका ध्यान इधर उधर होगा, मोबाइल चलाने लगेंगे, फिर आप मोबाइल उठाते ही सबसे पहले उसको देखेंगे तो आपको फिर याद आएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। आप फिर से लग जाएंगे अपने काम पे, ठीक है। आप टॉपर इंटरव्यूज़ देख सकते हैं बीच बीच में। अगर आपको ऐसा लेथर्जी फील होने लगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई डिड यू स्टार्ट, राइट, देन यू विल बी कनेक्टेड टू योर पर्पस को बिल्कुल नहीं भूलना है। होता ही है कि हम 1-2 महीने पढ़ते हैं, फिर जब एग्जाम एकदम करीब आ जाता है तो हमारी एनर्जी बिल्कुल वी हैव लॉस्ट इट एंड देन वी डोंट हैव द एनर्जी लेफ्ट टू प्रिपेयर। मतलब ये भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत क्यों की थी, है ना। हमारा एक गोल है, हमें पता है कि हमें या तो नाबार्ड में ग्रेड A लगना है या फिर IBPS AFO ऑफिसर लगना है ना। तो ये लगने के लिए हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सारे बच्चे हर दिन मेहनत कर रहे हैं। आपने देख रखा है कंपटीशन कितना हाई हो चुका है, क्यूआरई में भी इतना ऊपर जा रहा है। नाबार्ड में तो खैर छोड़ दीजिए, वहाँ पर एटलीस्ट क्वालिफाइंग है तो वो कम नंबर तो आप ला ही सकते हो, फिर भी बच्चे रह जाते हैं, है ना। सो डेली विक्ट्रीज लीड टू बिग रिजल्ट्स। तो हर दिन का काम हर दिन कीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे यू कैन हाईलाइट फैक्ट्स लाइक फार्मर वेलफेयर स्कीम्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, बजट एलोकेशन एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव्स। ये सब का आप ना एक जगह पे नोट्स बना के रख दीजिए, या फिर डिजिटली बनाइए, मैनुअली बनाइए, जो आपको ठीक लगे। नाबार्ड में तो एक्चुअली आपको टाइप ही करना है ना, तो वही बेटर रहेगा कि आप डिजिटली नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, जैसे है ना, हम लिखते नहीं हैं तो अच्छे से याद नहीं रहता, तो वो लिख भी सकते हैं फिजिकली पेन पेपर में, ठीक है। एवरी संडे इवनिंग आप क्विक रिकैप करिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरे हफ्ते क्या कर रखा है उसका आपको रिकैप करना ही पड़ेगा, है ना। फिर 1 पेज समरी शीट टाइप बनाइए कि ये है, ताकि आप जब फाइनल रिवीजन करें ना तो आपको पता रहे कि आपको क्या क्या भूलना, मतलब क्या क्या भूल जाते हैं, है ना। ये जो जर्नल भी आप बनाएंगे मॉक टेस्ट के लिए, उसमें भी देख के आपको याद आएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मैं भूल जाता हूँ, उसको वापस रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सी दिस पाथ इज नॉट ईजी, देयर विल बी डेज ऑफ सेल्फ डाउट, देयर विल बी डेज व्हेन रिजल्ट्स सीम फार अवे, बट रिमेंबर अ सीड डजंट स्प्राउट ओवरनाइट, राइट। You're an agriculture graduate, you already know that. It fights through the darkness of the soil before it touches sunlight. So, I told you,
बिलीव इन योर जर्नी, ठीक है, दिस विल हेल्प यू. Stay steady in your efforts and consistently do them. Every early morning revision, every solved mock test, every memorized scheme, they are all bricks in the foundation of your success. Prepare smartly, prepare passionately, and very soon IBPS AFO and NABARD grade A will not just be dreams, they will be your reality. So I'm wishing you all the best. If you have any queries, if you have any doubt or anything you want me to address in the upcoming videos, you can tell me. हम ये क्लैरिटी टॉक्स कर ही इसलिए रहे हैं ताकि बच्चों के दिमाग में जो सारे डाउट्स हैं, आप में से कई लोग होंगे जो अभी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप प्रिपेयर करने की भी सोच रहे हैं. आपके भी अलग अलग डाउट्स होंगे. कुछ होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने डाउट्स लेकर के आ सकते हैं. आप सब कमेंट सेक्शन में आपका पूरा वेलकम है. आप लिखिए कि ऐसे कौन से डाउट्स हैं. ये क्लैरिटी टॉक हमने बनाई इसलिए ताकि किसी में कोई डाउट ना रह जाए, उनको हर सवाल का जवाब मिल सके, ठीक है. आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है. बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि इनफ टाइम नहीं है, पर आपके पास अभी इनफ टाइम है. आपको पता है कि AFO का तो होने वाला है प्रीलिम्स नवंबर के 22-23 को, है ना, डेट आ चुकी है. मेंस एग्जाम जनवरी 4 में होने वाला है. NABARD आपके अगले 90 दिन में निकल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में एग्ज़ाम यानी प्रीलिम्स हो जाएगा. तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है. आप अभी भी अगर अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है. बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हो जाएगा. कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं, है ना. ये क्लैरिटी टॉक्स आप सभी को डेडिकेटेड है ताकि आपके कुछ डाउट्स ना रह जाए, ठीक है. ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर करते रहिए, बिल्कुल मत डरिए. अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है. अभी अगर आप बैठ के सब कुछ कर लेंगे आराम से हो जाएगा. इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है. चलिए हम मिलेंगे फिर से क्लैरिटी टॉक्स पे. Such videos, subscribe to the channel. And our initiative of IBPS AFO 24/7 test series by Clarity. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well. Get yourself enrolled now.